وہ ذرا مجھے بتائیے کہ کیا کیا چیزیں مجھے بتائیں. آفس آپ کو بریف کر دیتے ہیں. ابھی ہوئی ہے لاسٹ 2 دن پہلے BDC ابھی اس میں ہوا ہے جی. یہ خوشیاں جو ہیں وہ تو یقیناً آپ اس سے نابلد ہیں. جیل میں جیل ہو اور عید یقیناً اپنے گھر والوں سے دور آپ بیٹھے ہیں. میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد یہاں سے رہائی دلوائے اور آپ ایک اچھے پاکستانی بن کر آپ واپس جب جائیں اپنے گھروں میں تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت دے اور توفیق دے کہ آپ اپنے گھر والوں کی اور اپنے علاقے میں جو بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں آپ کریں. مجھے علم ہے کہ بعض معاملات میں بعض کیسز میں تاخیر ہوتی ہے, کچھ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, تو اس حوالے سے میں IG جیل بھی یہاں پر موجود ہیں اور سپریم جیل بھی ہیں اور چیف سیکرٹری بھی موجود ہیں یہاں پر. میں ایک مرتبہ پر آپ سب کو عید مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے علم ہے کہ جیل کے اندر عید کے کیا معنی ہیں. آپ اپنے پیاروں سے دور ہیں اور وہ آپ کو یاد کرتے ہیں, آپ ان کو یاد کرتے ہیں. تو میں بھی قیدی رہا ہوں تو مجھے اس کا اچھی طرح احساس ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جب گھر لے جائے, یہاں سے جب آپ رہا ہوں تو پھر آپ اپنے خاندان کی بھی اور اپنے علاقے میں جو بھی خدمت آپ ادا کر سکتے ہیں ادا کریں. اور یہاں پر اگر کوئی مسائل ہیں, اگر کوئی مشکلات ہیں تو میں آج آیا ہوں آپ کو ملنے. میرے دورے کا مقصد بھی یہی ہے. تو میرے ساتھ جو جیل کے جو حکام جو موجود ہیں اور حکومت پنجاب کے حکام موجود ہیں, تو اس میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی شکایت ہے, مجھے بتائیں. اور یقیناً پھر انشاءاللہ ابھی آپ کو تحائف بھی تقسیم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی مشکلات کو آسان کرے اور آپ ایک اچھے شہری پاکستانی بن کر جب رہا ہوں تو آپ پاکستان کی خدمت کریں انشاءاللہ. جی کوئی آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں مجھے. جی بی آئیے. صاحب میڈم جی کیا مسئلہ جی میرے نا بیٹے کا تھا مسئلہ. انہوں نے 2 مہینے ہو گئے سیاہ اسٹاف والوں نے مار دیا اسے. ہاں جی, تو میرا میاں بھی ادھر ہے, وہ پتہ نہیں وہ کوئی لگامی ہے. تو میرے سر ڈکیتی کے کیس میں ان کا کیس بنا تھا, اس کا بیٹے پہ بھی تو ڈکیتی کا نجائز کیس ڈال تھا. پہ تو سارے جیوں کو جیل میں. میرا میاں اس جیل میں اس کا فوت ہو گیا. ہے. 6 مہینے مجھے ہو گیا کہتے اس ہیں کہ جیل اس میں. کی کوئی ضمانت پیچھے دی آنے جائے. والا نہیں ہے. یہ جو سب اس کو دیکھیں جی رائٹ سر. اس کا کیا اس کے مسئلہ ہے, تو جو بھی مسئلہ ہے اس کو قانون مطابق حل کریں. جی رائٹ رائٹ ٹھیک ہے میرا میاں بھی اسی جیل میں. جی اللہ تعالیٰ. میڈم پوچھ لو, پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کسی کا کوئی اور مسئلہ ہو اور کسی کا مسئلہ ہے تو بتائیں. جی آئیے اماں. وہ جی آ جائیں مجھے, کیا مسئلہ ہے مجھے جانے کا مسئلہ بس مجھے تو ہمیں 3 لوگوں 3 بندے ہیں. اماں جی انٹرنی ہے ان کی انڈیا کی جلدی جو سے ہے ہماری انکوائری ہو جائے, ہم چلے جائیں. یہ کروا دو. پروسیڈنگ چل رہی ہے فیڈرل ریویو بورڈ میں. فیڈرل ریویو بورڈ میں. سپریم کورٹ کے جسٹس اس کو ہیڈ کرتے ہیں, اچھا یا فریدی صاحب. ٹھیک. تو وہ جب تک انڈین گورنمنٹ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی جی تب تک ہم ان کو ڈپورٹ نہیں کر سکتے. تو یہ پھر لے لیں. میں لا منسٹر کو جی ڈاکٹر گزارش کروں گا کہ وہ سپریم کورٹ کو وہ اس بارے میں جو گزارش کر دیں. ٹھیک. ایکچولی سر یہ ڈیل کرتے ہیں منسٹری آف فارن افیئر. اچھا ٹھیک. موفا
ہاں موفا کرتا ہے, موفا انٹریکٹ کرتا ہے ود انڈین بس یہ موفا. اب مجھے دے دیں, میں اوپر سے ہی بات کروں. رائٹ 3 بندے ہیں رائٹ. پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا آپ کا کیس بھیج رہے ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا نا آپ کو شکریہ بہت بہت. یہ کتنا عرصہ ہو گیا سر پوچھ رہے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا جیل میں. 9 ماہ ہو گیا. 9 ماہ تو آپ تو کس طرح آپ یعنی ویزا نہیں تھا آپ کے پاس کیا ویزا ختم ہو گیا. یہ اچھا ختم اچھا سامان جاتے تھا لے رہے تھے بچوں کے لیے لے کے جا رہی تھی. اچھا جی بیوی میں گجرات دے رہنے والی ہیں تے میرا نا گجرات والے چلان بھیجنا نا مہربانی ہوئی سر میری. ہاں جی میڈم سر میرا جڑا نا 4-5 مہینے ملاقات نہیں آتے میرے بچے چھوٹے ان کی اپلیکیشن بھیجی. ٹرانسفر ٹو گجرانوالہ سر 25 سال قید ہے. یہ کر دیتے ہیں جائے صاحب کی اتھارٹی ہے یہ کر دیں گے. سر ہم 2 بہنیں ہیں دوسری جی چلی جائیں گے دونوں کی کر دیتے ہیں, دونوں. چلی جائیں گے. جی ممتاز ہاں جی بولے آپ. ممتاز سلیم صحیح صاحب سر مینوں 23 سال جیل چ ہو گئے نے میرے پیچھے بناਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਨ 2006 ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ. ਮੈਂ ਸਨ 2001 ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ. کئی سال ہو گئے کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے ریگارڈنگ ریمیشنز ٹو دیٹ 780 کیسز سر. شی از کنفائنڈ ان ڈکیٹی مرڈر اینڈ 780 دہشت گردی کیس میں اس کو 25 سال سزا. اور 2006 میں سر سپریم کورٹ کی ایک ڈائریکشن آئی تھی. وہ کتنے 25 سال ہو گئے ان کو جی جی 25 سال ابھی نہیں تھے پورے ہو گئے. اچھا پورے نہیں ہوئے 23 سال وہ کہتے ہیں معافی نہیں ملی مجھے ریمیشن نہیں مل رہی. اچھا 2006 کے اندر سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس 780 کے کیسز ہیں ان کو ریمیشن نہیں دی جائے گی. اب انہوں نے 25 سال کا مطلب ہے کیلنڈر ایئر 25 سال اپنی سنٹینس پوری پوری کر لی ہے جی کرنی ہے کرنی ہے اس کے بعد ریلیز ہوں گے. اور اس کا جو کیس ہے ریمیشن کا 780 کا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے. اچھا عید کے بعد سر ڈیٹ لگی ہوئی ہے. پاکستان میں. یہ تو سر یہ تو ایک پرنسپل تو ان کو پھر ہم سپریم کورٹ سے ہم ٹیک اپ کریں گے جو بھی ان کو ریلیف مل سکتا ہے کورٹ کے ذریعے اس کے لیے کوشش کریں. پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا. ٹھیک ہے بیبی جی 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 میرے 2 بچے ہیں میں مزدور ہوں بہت ذلیل ہوئی پڑی ہوں. کتنا عرصہ ہو گیا آپ 4 ماہ. حوالات کے میں ہے 9C کے کیس میں ان کا کیس چل رہا ہے جلد سماعت چاہتی ہے. نارکوٹکس کا کیس ہے. تھانے والے 1.5 kg چرس جو ہے وہ گاڑی ہے اور یہ دسمبر 22 دسمبر 2022 کو یہ اندر سر. ویسے ہم نے اپنے طور پہ اس کی جو اپلیکیشن ہے فار گرانٹ آف بیل وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو بھیجی ہوئی ہے. بٹ شی از ٹیلنگ کہ شی از انوسینٹ. پولیس نے پرچہ ڈال دیا. تو اس کو دیکھیں کیا اس کا جی بھیج دیتے ہیں اپلیکیشن ہوم سیکرٹری کو دے رپورٹ بنوا کے دیکھ لیں سب دیکھ لیں اس کو. ٹھیک ہے اے سی ایس صاحب کو اپلیکیشن بھیجنی ہے پولیس انویسٹیگیشن کے لیے. کہہ دیا ہے پرائم منسٹر. اچھا بیوی دیکھ لیتے ہیں. جی اما جی جی آگے آ جاؤ. ہاں جی اب سے ہیں جی دسو پرائم منسٹر صاحب دسو. میں صاحب جی میری رہائی کا مسئلہ بنے ہے 5 سال معافی بھی آئی ہے 6-7 مہینے ہو گئے نے تو میں ہوں بہت مجبور ہاں. میرے پیچھے آنا لگا مینو 11واں سال ہے. 25 سال قید ہے. میڈیکل بورڈ کروایا گیا تھا تو میڈیکل بورڈ کی اوپینین مطابق اس کو ذرا جلدی کریں تو یہ ہوم سیکرٹری کو کہہ دیا پرائم منسٹر صاحب نے. کہہ دیا آپ کا میڈیکل بورڈ ہو جائے گا. مزید کوئی ہے کوئی درخواست؟ خاتون کہتی ہے کہ ان کی سپریم کورٹ میں اپیل لگی ہوئی ہے ان کی اپیل کی جلد سماعت کی. سر ابھی اے سی ایس صاحب کے آرڈر پہ پورے پنجاب میں یہ ایکسرسائز کی گئی ہے. جتنی اپیلیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پینڈنگ ہے ان کی اپلیکیشن ساری ہم نے بھجوا دی ہیں. جی جو سٹنگ چیف منسٹر صاحب ہیں وہ تشریف لائے تھے یہاں پہ. انہوں نے آرڈر دیا تھا کہ اپلیکیشن ہمیں بھجوا دیں. میں خود بات کروں ٹائم لے گا. لیا ہم نے ٹھیک پرسنلی مل کے ٹائم لے لیا. بڑا اچھا ہے بہت اچھا. زینب آپ بھی باقی بات
मैडम बाकी ये तकसीम करते हैं सवाल। उसके प्यारे जो हैं वो अपने अजीज़ के लिए वो घर में ज़ाहिर उनको याद करते हैं, कैदी अपने अजीज़ों को याद करते हैं। तो जिन हालात में ये लोग जेल में ईद मना रहे हैं वो ज़ाहिर है कि उस पर मज़ीद कोई बात नहीं की जा सकती, लेकिन उनके जो मसाइल हैं उनको मैंने मुबारकबाद दी ईद की, और उनके मसाइल उनको मैंने आज सुना, और उनके जो जायज़ उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको मैंने वहाँ पर उनको देखा। उसके बाद फिर मैंने मीटिंग की चीफ सेक्रेटरी पंजाब से और जो एडिशनल सेक्रेटरी होम जो हैं जेल्स के मियाँ साहब, आईजी जेल और सुप्रिटेंडेंट जो यहाँ के हैं। तो 2-3 बातें बहुत अहम हैं, न सिर्फ कोलगप्पा जेल के लिए, न सिर्फ बल्कि पूरे पंजाब के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, कि यहाँ पर जेलों में जो बैतुल खला हैं उनकी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, इंतहाई ख़राब है। उसके लिए अच्छे बैतुल खला बनाकर उनकी बाकायदा सफाई, उनका अच्छा इंतज़ाम कराना, ये जेल की इंतज़ामिया और हुकूमत का ये फ़र्ज़ है बिल्कुल। अगर वहाँ पर बुनियादी उनकी जो ज़रूरत है, वहाँ पर जो उनके जो हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स हैं वो इंतहाई अगर ख़राब होंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि बीमारी हर तरफ फैलेगी। इसी तरीके से जो इंसानी फजला जो है और गंदगी के ढेर जो हैं उनको वहाँ से उठवाने के लिए जो एक बड़ा अच्छा निज़ाम था वो ख़त्म हो चुका था। अब आके दोबारा वो निज़ाम दोबारा शुरू किया गया है, और एक कवर्ड गाड़ी में वहाँ पर जो गंदगी के ढेर यहाँ से निकाले जाते हैं। जब मैं यहाँ पर था तो बैलगाड़ी में वो उठा के लेके जाते थे वो ढेर, जिससे हर तरफ बदबू और गंदगी और बीमारी फैलती थी। और उससे पहले एक बाकायदा जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम था, उससे पहले बड़ा वो शानदार सिस्टम था। वो आके सामान ये सारा उठाते थे बंद गाड़ियों में। तो एक और दूसरा, इनके कैदियों के नहाने का, इनके कपड़े धोने का जो निज़ाम इंतहाई ख़राब है। मैंने उसकी भी मैंने गुजारिश की है कि फिल फॉर इसको ठीक करें। और तीसरी बात जो बड़ी अहम है, इलाज मुआवजा और दवाइयों की तरसील। मैं यहाँ पर अंदर जो बात कर रहा हूँ वो यहाँ नहीं करना चाहता क्योंकि ईद का दिन है। मैंने अब जो प्रपोज़ल दी है चीफ सेक्रेटरी साहब को कि पंजाब में और दूसरे सूबों में मैं बात करूँगा कि जहाँ पर जेलें हैं, मसलन लाहौर में 2 जेलें हैं, एक कोलगप्पा जेल और कैंप जेल, दोनों के मिलाकर 8,000 कैदी हैं। अब 8,000 कैदियों में अगर एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह ताला करे कि एक भी बीमार ना हो, लेकिन बीमारी और सेहत ये इंसानी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। उसके लिए अगर लेट से 8,000 कैदियों में अगर 5% भी बीमार हों, जो कि 400 अफराद बनते हैं, तो उनके इलाज मुआवजे का जो निज़ाम है वो इंतहाई ख़राब है। यानी अगर किसी का अगर CT स्कैन होना है या MRI होना है या कोई और एक्सरे होना है तो हफ्ते नहीं महीने गुजर जाते हैं और वो कैदी जो है वो दम तोड़ जाता है। एक उसको सज़ा मिले अपने किए की, अपना बिल्कुल वो कानून और इंसाफ का फ़ैसला है, मगर उसके बाद उसका जो बुनियादी जो हक़ है उसको छीनना तो वो तो सरीन ज़्यादती है। कुरान करीम भी इसकी गवाही देता है कि भाई अगर जो कैदियों के लिए नरम गोशी इख्तियार करो, उनका कोई हक़ जो है उनको उनके हवाले करो। और कुरान करीम इसकी गवाही अपनी कई जगह देता है कि जब उनको अगर छुड़ाओगे, जिसकी पूरी हो गई मुद्दत, तो उसकी अगर जो छुड़ाओगे तो बड़ा सवाब का काम है। और इसी तरह जो यतीम बेवा का दर्जा बदर्जा, तो यहाँ पर उनके इलाज के लिए मैंने ये कहा है कि एक डेडिकेटेड अस्पताल होना चाहिए। इनको तो अगर
अपना सर्विस हॉस्पिटल जाना पड़ जाए या किसी और जाना पड़ जाए तो रिश्वत, पैसे और सिफारिश के अलावा जा नहीं सकते। वो कहाँ से रिश्वत लाएंगे? वो पहले ही अपनी यहाँ पर आके उनकी अदालतों में उनकी वकला उनकी जो फीसें हैं वो नहीं अदा कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि अपना नहाना धोना, इलाज, मुआवजा ये इनका बुनियादी हक है। अगर ये उनको नहीं मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि ये पर निज़ाम सरीहन ये नाइंसाफ़ी पर मबनी है। तो इसके लिए मैंने एक प्रपोज़ल दी है कि हम एक अस्पताल, डेडिकेटेड अस्पताल हो जहाँ पर सिर्फ जो 8000 कैदी हैं, एक का पॉलिट ये मंसूबा है। अगर ये कामयाब होगा तो उसको पंजाब में इंशाअल्लाह बाकायदा एक तरतीब के साथ, एक बड़ी सोच विचार के साथ हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इस तरह पूरे पाकिस्तान में इस निज़ाम को फैलाएंगे कि कैदियों के लिए डेडिकेटेड अस्पताल हों। वहाँ पर अपना ये न हो कि उनको जाना पड़े अपना सर्विस अस्पताल कि जनाब ACS होम से इजाज़त ले रहे हैं, पहले अपने IG से इजाज़त ले रहे हैं। मैं सियासी कैदियों की बात नहीं कर रहा, वो एक अलहदा मामला है। मैं आम कैदी की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि डेडिकेटेड अस्पताल की मैंने बात की है जहाँ पर डेडिकेटेड डॉक्टर्स हों, सर्जन्स हों, फिजिशंस हों, नर्सेस हों, अद्वियात वहाँ पर मौजूद हों, ख़वातीन का विंग हो और मर्दों का विंग हो, ताकि ये जो इसको पूरे पाकिस्तान में आप यकीन कर लें कि जो लाखों जो कैदी हैं उनको अगर अपना खुदा न खास्ता बीमारी आन पड़े तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। किसी का वालिदैन भावलपुर में रहते हैं, किसी के डेरा गाजी खान में, किसी के फैसलाबाद में। वो अगर चल के आते उनको तो पता भी नहीं होता कि उनका बेटा या उनका जो रिश्तेदार वो किस हालत में है। तो ये भी मैंने यहाँ पर गुजारिश की है। फिर इसके अलावा यहाँ पर अब जो मैं पिछली मरतबा आया था, हमने बाकायदा एक के जेलों में बुनियादी जो इलाज के मशीनें वो मौजूद होनी चाहिए, वो आज मैंने देखी हैं। ऑपरेशन नहीं हुई, वो भी इंशाअल्लाह जल्द ऑपरेशन करेंगे। अद्वियात का जो हसूल है उसको आसान बनाया जाए, कहीं रिश्वत ना हो, किसी को अपना पैसे ना देने पड़े। कैदी से आप उसको जिसको 25 साल की सज़ा होगी उससे आप और क्या जुल्म करेंगे? तो ये मैंने यहाँ पर आज फिर जो जिनके पास पैसे नहीं हैं और उनको ज़मानत चाहिए और ज़मानत उनके ड्यू है या वो पैरोल पे जा सकते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। ये सारी बातें आज मैंने की हैं और इंशाअल्लाह एक हफ़्ते में मैंने गुजारिश की है चीफ सेक्रेटरी साहब को और इंशाअल्लाह ये बड़ी मेहनत से IG जेल खाना जात हैं यहाँ पर और सुब्रन मौजूद हैं। ये सब एक बाकायदा एक प्लान बनाएंगे, प्रपोज़ल, उसको इंशाअल्लाह पर हम बैठ के उसको अप्रूव करेंगे ताकि कैदियों का जो हक है वो उनको दिलवाया जा सके। इसी तरह उनकी खुराक की बात है, खाने के हवाले से कि अच्छी खुराक मिले उनको। और फिर जो जिन्होंने एक दिन रहा होना है वो जब माशरे में जाएं तो दोबारा अफ्यून, चर्च या कोई और अपने जुर्म ना करें। उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, वो कारपेट मैन्युफैक्चरर्स बन जाएं, वो सिलाई कढ़ाई उनको सिखाई जाए, उनको अपना फुटबॉल उनको बनाना उनको सिखाया जाए, हॉकी की स्टिक्स बनानी सिखाई जाए, ताकि जब वो वापस माशरे में जाएं तो अच्छे शहरी बन सकें एंड दे बिकम प्रोडक्टिव हैंड्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये सारी बातें आज मैंने की हैं। लेकिन मैंने जो कानूनी जिनको मदद चाहिए, जिनको पास पैसे नहीं हैं और उसकी बिना पर कई साल वो जेलों में रहते हैं कि उनकी कोई फ़ीस देने वाला नहीं, सिर्फ जाके उनकी ज़मानत उनकी ले ले या उनकी रिहाई के लिए इंतज़ाम करे। फिर इसके अलावा एक ऐसे जो कैदी हैं 2-3 मैंने देखे जब मैं यहाँ पर था, 70 साल उनको सज़ा हुई है। उनसे 35 साल किसी ने अपना 30 साल काट लिए। मैं समझता हूँ कि अपना जो उम्र कैद जो है वो 25 साल की होती है, 30 साल की होती है। जिन्होंने 30 साल काट लिए, 35 साल, उनको फिर रहा होना चाहिए। लेकिन ना उनको कोई पूछने वाला है, ना उनको कोई रसाई है। ये वो सारे मामलात हैं जो मैंने आज यहाँ पर डिस्कस किए हैं और मैं अदालत जो लोअर कोर्ट्स हैं उनसे भी मुल्तमस हूँ, जो आला अदालतें हैं उनसे भी मुल्तमस हूँ कि सू मोटो क्या आपने कितने सू मोटो लिए इन केसेस में। क्या पूछा अपना जेल खाने जात से कि भाई आपके पास कितने कैदी हैं, क्योंकि सू मोटो का बुनियादी मकसद होता है कि अवामी मफाद आमा, पब्लिक इंटरेस्ट, किसी एक का इंटरेस्ट नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट। कितने सू मोटो लिए इन कामों के लिए कि जहाँ पर कैदियों के साथ इंसाफ हो, उनके साथ बेहतरी हो। कितना यहाँ पर जो अपना इस जेल में 4000 कैदी हैं,
पूरे पंजाब में 50,000 कैदी हैं, पाकिस्तान में लाखों कैदी होंगे, हज़ारों कैदी ऐसे हैं जिनकी फौरी रिहाई हो सकती है कानून के मुताबिक। इस बारे में इन्होंने अदालतों ने कितना अपना काम किया, ये हैं वो सवाल कि जो कौम मुझसे पूछती है और तमाम इदारों से पूछती है। मैं समझता हूँ कि सुओ मोटो इन्हीं कामों के लिए हैं कि जहाँ पर मफाद आमा हो, और इसके अलावा कोई और सुओ मोटो का मकसद बन नहीं सकता। ना आइन उसकी इजाज़त देता है, ना कानून उसकी इजाज़त देता है। तो मैं समझता हूँ कि आज मैं यहाँ पर कोटकपत जेल ईद के दिन आया हूँ और मैंने सिर्फ इसी के लिए मैंने यहाँ पर अपना गुफ्तगू सारी डिस्कशन की है। और फिर 8-8 साल से यहाँ पर कैदी बैठे हैं जिनको फ़ौरन रिहा हो जाना चाहिए, मगर उनके पास ना वकील है ना पैसे हैं। तो ये जो दौरे होते हैं वो जो जुडिशल ऑफिसर्स आते हैं, मैं समझता हूँ कि उनका भी फ़र्ज़ है, हुकूमत का भी फ़र्ज़ है कि पूरी इन कैदियों की मदद की जाए और उनका जब वक्त पूरा हो जाए उनको फ़ौरन रिहा किया जाए। और इस दौरान ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि दे बिकम वो मेमार बन जाएं, कौम के जब जाएं वापस तो प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव काम करें। मैं इन अल्फाज के साथ जेल इंतज़ामिया का और चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर पंजाब के शुक्रगुजार हूँ कि वो ख़ुद भी आए थे और अभी मुझे उन्होंने बताया कि इस वक्त जिन्होंने ईद पे जिनकी रिहाई थी करोड़ों रुपए खर्च करके तो उनको रिहा किया गया। ये बड़ा सवाब का काम है, बहुत सवाब का काम है। और इसीलिए हुकूमत को, इदारों को मिलकर पाकिस्तान को हमें आगे बढ़ाना है। और मैं इस वक्त पूरी कौम को ईद के इस मौके के ऊपर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं कि वो पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाले और हमारी इज्तिमाई बसीरत और इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान इन चैलेंजेस से निकल सके। ये तभी होगा कि हम सब मिल बैठें। इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी, इट्स अबाउट अस। अगर हम होंगे इकट्ठे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये मुल्क इन तमाम मुश्किलात से निकल जाएगा। अपना जो ज़रूरी बात यह है कि हमें अपनी ज़ात से ऊपर बढ़ना होगा, हमें अपने ज़ाती इख्तिलाफ़ात एक तरफ करने होंगे और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हमें इकट्ठे होना होगा। इसके बगैर कोई भी सोसाइटी, कोई मुल्क जो है वो अपने चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। और किस तरह इकट्ठे होना है वो इकबाल ने उसका बहुत 80 साल पहले बताया था कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। जब मौजें दरिया में हों तो खौफ आता है, जब कौम इकट्ठी हो तो पूरी दुनिया डरती है कि ये मुल्क बड़ा मुतहद है। जब वो मौज जब दरिया के किनारे जाती है तो झाग बन जाती है, उसका न सिर्फ उसका खौफ ख़त्म हो जाता है, वो ख़ुद मर जाती है। तो इकबाल कहता है कि मिल्लत जो है, उसका रब्त जो है, वही कौमों की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। तो बस इन अल्फाज के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं एक हफ़्ते के बाद चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग करूँगा और जेल रिफॉर्म्स के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। शरीफ ने ईद के रोज़ कोट लखपत जेल लाहौर का दौरा किया है। वज़ीर आज़म कैदियों से मिले